ब्रेक के बाद इस्तकबाल। पश्मीने का नाम आते ही जहन में कश्मीर की तस्वीर आती है, लेकिन अब लद्दाख पश्मीने के मैदान में अपनी अलग पहचान बना रहा है। लद्दाख की 2 मकामी खवातीन पश्मीना को दुनिया के सामने पेश कर रही है। इन खवातीन ने कई मकामी खवातीन को भी इससे जोड़ा है। साथ ही पश्मीना को जीआई टैगिंग दिलाने की कोशिश भी जारी है। पेश है हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वागू की ये खास रिपोर्ट। पश्मीना का नाम सुनते ही कश्मीर की खूबसूरत वादियां और कश्मीरी शिल्पकारों की दुनिया में मशहूर कारीगरी नजरों के सामने आ जाती है। लेकिन कश्मीर से करीब 580 किलोमीटर दूर लद्दाख में पश्मीना की एक नई कहानी लिखी जा रही है। पश्मीना को लद्दाख में एक अलग पहचान देने के लिए 2 लद्दाखी महिलाओं ने 2016 में एक नई शुरुआत की थी और आज लेना पश्मीना के नाम से इनका ये कामयाब स्टार्टअप नई ऊंचाई छू रहा है। लद्दाख के चंगथांग की ऊंचाइयों में पाली जा रही भेड़ से पश्मीना आता है, जो कश्मीर में ले जाकर शिल्पकार अलग अलग प्रोडक्ट तैयार करते हैं, जो पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन 2 महिलाओं ने ठाना कि लद्दाख को सिर्फ पश्मीना का सोर्स तक सीमित नहीं करना है, बल्कि लद्दाख की पश्मीना को दुनिया के टेक्सटाइल मैप पर अपनी एक अलग पहचान दिलानी है। स्टेंजिन मिंगलेक पुणे से एनवायरमेंटल साइंसेज में MSc कर चुकी हैं और सोनम अंगमो दिल्ली से बायोटेक्नोलॉजी में M.Tech कर चुकी हैं। लेकिन दोनों ने मिलकर ये तय किया कि लद्दाख में पश्मीना को एक नए मुकाम पर लेकर जाना है और 2016 में लेना पश्मीना की शुरुआत हुई। So before starting Lena, when I was doing my masters in Delhi, I was studying biotechnology, completely different things from the kind of textiles that we make now. I wanted to come back to Ladakh and do something with my community, and my father was working in the government handloom department, so he had all the knowledge about the artisans who worked with the pashmina and about the story of pashmina, Ladakh's pashmina. So that's how the interest to first work with pashmina came. And then I was really curious that the story of pashmina in Ladakh was that in the past, or since from the Silk Road days, Pashmina has always been known, not from a Ladakh's point of view. I mean, Ladakh has always been known as just the source of the raw material, but not much value addition was done in Ladakh. So now we wanted to start our company, and we wanted to gradually shape a different kind of Ladakh Pashmina identity by making our own Pashmina products, adding value to the products, So starting from the first step of creating the products like spinning and weaving to the last step of finishing, everything is done under this one roof at our company. One of the vision lies ahead is to bring Ladakh Pashmina in the textile map of the world. So I would say that since at Lena we oversee the entire production cycle, right from sourcing of pashmina from changtang to spinning, weaving, natural dyeing, and to the final finish, it's all done in Ladakh. And our product is very different from Kashmiri product, though there's like beyond imagination, the art and everything is so wonderful. But we want to create Ladakh, have our own identity when it comes to pashmina. So everything is made in Ladakhi way. So when you look at our product, it's very distinctive. It has a Ladakhi identity in it, because the way the spinning is done, the way the natural dyeing is done, the way the weaving is done, everything is very Ladakhi. And government is also in the process of GI tagging the Ladakhi pashmina. Yes. So they definitely want to GI tag the raw pashmina, so that whoever is using Ladakh pashmina, it has to have the Ladakhi identity. Because nowadays people do claim that we use Ladakh pashmina, and it might not be possible. So when we buy the pashmina from the cooperative, it would be GI certified. लेना पश्मीना में शुरू से आखिरी प्रोडक्ट तक पूरी प्रक्रिया हाथ से की जाती है। यहाँ तक कि डाई भी प्राकृतिक रंगों से किया जाता है। लेना न सिर्फ पश्मीना को लद्दाख में नई पहचान दे रहा है, बल्कि लद्दाख की महिलाओं को रोजगार भी दे रहा है। इस स्टार्टअप में सभी कर्मचारी महिलाएं हैं, जो लद्दाख की महिलाओं को सशक्त भी बना रही हैं। 5 महिला शिल्पकारों के साथ इसे शुरू किया गया था और अब 35 से ज्यादा महिलाएं इसमें जुड़ चुकी हैं। लेह में लद्दाख पश्मीना को पसंद करने वाले लोग भी मानते हैं कि लद्दाख पश्मीना की शुद्धता पर आंखें बंद करके भरोसा किया जा सकता है। वहीं लेना पश्मीना का कहना है कि पहले केवल विदेशी पर्यटक ही लद्दाख पश्मीना में दिलचस्पी लेते थे, लेकिन अब स्थानीय नागरिक और भारतीय पर्यटक भी इसे खूब पसंद कर रहे हैं।
अगर आप डिफरेंट शॉप्स पे जाते हैं या लोकल जो शॉप्स आपको दिखाई देती है, अ लॉट ऑफ ट्रस्ट फैक्टर जो होता है वो अवेलेबल नहीं है उन शॉप्स पे। यहाँ पर आई कैन सी द इंटायर प्रोसेस कि कैसे बनता है पश्मीना और उसके बाद वो कैसे कन्वर्ट होके फाइनल प्रोडक्ट में आता है। एंड आई ट्रस्ट दैट दिस ब्रांड हैज़ ऑथेंटिसिटी, जो कि मुझे नॉर्मली इवन इन दिल्ली बहुत बड़े ब्रांड्स पे नहीं फील होता है। सो दैट इज़ द डिफरेंस आई फील। तो जब हमने शुरू किया था इनिशियली तो हमें थोड़ा ये था कि लोग कैसे रिसीव करेंगे प्रोडक्ट, क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत डिफरेंट है। जो नॉर्मली लोकल मार्केट में आप पहले देखा होगा बहुत पतले होते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट देखने में थोड़ा थिकर होता है और कोर्स दिखता है, बट व्हेन यू टच इट बहुत सॉफ्ट होता है। तो पहले हमें लगा था कि कैसे वो करेंगे, बट क्योंकि हमारा जो मार्केटिंग हमने किया था लाइक थ्रू सोशल मीडिया, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया बहुत लाइक बिग रोल प्ले कर रहा है, तो उसके बाद जो है लोगों को समझ में आ रहा है। और हमने लोगों को, क्योंकि जब वो आते हैं, कोई पहली बार जब खरीदते हैं जब उसको यूज़ करते हैं, तो प्रोडक्ट का जो एक्चुअल फील होता है या कितना जेन्युइन है या रियल है या कितना बेनिफिशियल है, उसको करने के बाद लोग दोबारा भी आते हैं। तो नॉट ओनली लाइक फॉरेनर्स, पहले फर्स्ट ईयर में तो फॉरेनर्स ज़्यादा आते थे, तो अभी इंडियंस भी आते हैं, लद्दाखीज भी आते हैं, तो हर तरह के कस्टमर्स इसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत फंक्शनल है। ऐसा नहीं है कि शो पीस के लिए है, हम बोलते हैं कि रोज़ पे इसको यूज़ करो, जितना आप यूज़ करोगे उतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ये ज़्यादा वार्म हो जाता है। तो इसलिए लोग जब यूज़ करते हैं उसके बाद का जो फाइनल उनको जो रिज़ल्ट आता है या एक्चुअल प्रोडक्ट उनको पता चलता है, तो लोग बार बार आते हैं सर। लद्दाख में पश्मीना के सेक्टर को विकसित करने के लिए लद्दाख प्रशासन कदम उठा रहा है। लद्दाख के डिविजनल कमिश्नर सौगत बिस्वास ने न्यूज़ 18 लद्दाख से कहा कि लद्दाख पश्मीना की जीआई टैगिंग चल रही है, जो कि अपने अंतिम चरण में है और जल्द ही जीआई टैगिंग लद्दाख पश्मीना को मिल जाएगी। लद्दाख के इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए पहले हमें लद्दाख के स्ट्रेंथ्स को समझना पड़ेगा। तो लद्दाख के स्ट्रेंथ्स जो यहाँ के ओरिजिनल प्रोड्यूस है वो है, जैसे आप जानते होंगे इंटरनेशनली फेमस पश्मीना वो लद्दाख में पाया जाता है। लद्दाख के चांगथांग एरिया के जो गोट्स हैं वहां से ही पश्मीना सारा निकलता है। तो वो पश्मीना का सेक्टर कंप्लीटली डेवलप करने के लिए लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन जो है काम कर रही है, और जो उस सेक्टर में काम करते हैं, जो उस फाइबर को निकालते हैं, स्पिनिंग करते हैं, वीविंग करते हैं, उसमें उसको सेल करने के लिए मार्केटिंग, पैकेजिंग और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, तो उस पे फोकस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, जिससे कि पश्मीना का अपना नाम, अपना वजूद जो है उसका फायदा लद्दाखियों को मिले। और उसके लिए जीआई टैगिंग हमारी पश्मीना की चल रही है, लद्दाख पश्मीना की, जो कि लास्ट स्टेज पे है, और उम्मीद है कि जल्दी थोड़े ही दिनों में वो जीआई टैगिंग भी पश्मीना की लद्दाख को मिल जाएगी। सिल्क रूट के दिनों में लद्दाख की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा इस पर निर्भर था कि कच्ची पश्मीना को पश्चिमी तिब्बत और पूर्वी लद्दाख से दूसरे क्षेत्रों में लाया जाता था, जहां कपड़ा बनाया जाता था। लेकिन आज लद्दाख इस पश्मीना को फिर एक नए रूप में दुनिया के सामने ला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 लद्दाख।